बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम my dear students. Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. Let's start the class by reviewing the yesterday activity. I am going to show a different presentation in which you will find all those material which we have discussed yesterday. तो मेरे बच्चों, अगर आपको प्रेजेंटेशन की स्क्रीन शेयर हो चुकी है, then we start, and right now we are going to review the yesterday activity. Okay. Abir is there. Abir, are you there? Okay, thank you. Okay, so let's have a close look. Studying a new subject. What is this subject about? Which field of life it belongs? What does it deal? Likewise, before studying accounting, we must know to which field of the life accounting may relate. Give me the answer. Which field of life accounting may relate? Very good. Very good, Ali Muhammad Saab. Wajiha, Fatima, Jazakallah. Arman said banking. Arman Jamil Sahab, you said banking. तारिक आजम साहब बिजनेस लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें स्पेलिंग याद नहीं आ रही, आई थिंक. जी प्लीज जो है ना, क्लास को बिल्कुल सीरियस अंदाज में अगर हम पढ़ाई के अंदाज से ही पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा. आपका एक एक रिप्लाई मेरे लिए आई सेट बहुत अहमियत रखता है. ओके, सो व्हाट अकाउंटिंग इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? पीपल थिंक accounting as highly technical field. Nearly everyone practices accounting in one form or another on almost a daily basis. प्यारे बच्चों, we have already discussed all these things, all these material yesterday, but I am going to review quickly. Whether we are running a business, working for salaries, or managing our house budgets, or planning about your ED or pocket money, we are dealing with accounting concepts and accounting information. Okay. Accounting in everyday life, tracking your expense and income, budgeting and control your money, reconciliation, making sure all your charges are correct. A very simple example, when you receive electricity bill, and if you have any doubt, you check your meter reading and confirm it through meter reading that the meter reading is correct, then you satisfied yourself
then the bill is correct. The next point is about savings and planning for the future, investing to make more money and getting better grades. Getting better grades. I would like to request Maz Zahid. I would like to request Mr. Maz Zahid to unmute the mic, and if you can explain it briefly, that getting better grades in accounting, how it is applicable in accounting. Maz Zahid, are you there? Okay. Minal Khurram said planning and scheduling. Okay. यानी आसान लफ्जों में यूं कह सकता हूं कि हम उसका भी एक तरीके से हिसाब किताब करते हैं कि हमें कहाँ किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हमने लूज किए, कहाँ किस सब्जेक्ट में हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड, वेरी गुड. ओके, तो आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज आज मैं चाह रहा हूं कि हम मजीद आगे कुछ पढ़े ना, तो जल्दी जल्दी इसको एक रिव्यू कर लेंगे. अकाउंटिंग रिलेटेड टू बिजनेस. अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ बिजनेस, एंड अकाउंटिंग पूरी बिजनेस के गिर्द घूम रही है. रिमेंबर, as I earlier mentioned, that in your first year accounting SLO, we are going to study accounting about only business. What is business? Business is not a new word for all of us. Every day we come across the word business, directly or indirectly. Business is essential part of our world. Business is an economic activity that satisfy our need of food, clothing, shelter, and many other requirements. Simple definition of business: any activity which is undertaking with the object to earn profit is called business. अब देखें आपके प्रॉफिट जो है बिजनेस, जब व्हेन यू गो फॉर बिजनेस, व्हेन यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, तो ये कोई आसान काम नहीं होता प्यारे बच्चों. अगर प्रॉफिट कमाना इतना ही आसान, इतना ही इजी होता, तो हर कोई प्रॉफिट कमाने लग जाता. हर शख्स दुनिया में सिर्फ बिजनेस करता हुआ नजर आता, बट आप देखते हैं कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है. रिस्क, रिस्क फॉर व्हाट? एग्जैक्टली. जजाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए आप तमाम लोग. रिस्क ऑफ लॉस. प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट रिस्क नहीं होता. प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अ थॉट. प्रॉफिट इज अ होप. You go for business just to earn profit. You never start business to earn loss. You never start business to earn loss. You never start business to bear loss. But you know, business is an activity where you have profit, or might be you have to bear loss. Okay, तो प्रॉफिट मेरे बच्चों मेहनत करने से हासिल होगा. इस पिक्चर में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये डॉलर्स हैं, अगर आपको पिक्चर में नजर आ रहा हो, थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो कि आप जब पैसे कमाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इतनी आराम से प्रॉफिट नहीं जनरेट होता. ओके, तो प्रॉफिट सामने नजर आ रहा है, और आपको किस तरह
जी मेरे बच्चों, ओके, नाउ आई ऑडिबल? प्यारे बच्चों, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ओके। तो प्यारे बच्चों, वही एक मसला जो सबके साथ, पाकिस्तान, लोड शेडिंग, वही सेम प्रॉब्लम। तो लाइट चली गई है, नेटवर्क बंद हो गया, और मुझे क्विकली अपने नेटवर्क को कन्वर्ट करना पड़ा। तो बहरहाल, चलिए वापस आते हैं, बात करते हैं जो हम कर रहे थे। स्लाइड अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई हुई है आप लोगों को? ओके, थैंक यू, जजाकुमुल्लाह। तो प्यारे बच्चों देखें, प्रॉफिट जो है आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं मजीद। तो बिजनेस बेसिकली अगर आप देखें तो ये पिक्चर जो हमने बनाई है जानबूझकर कुछ इस तरह की है कि बिजनेस जो है वो इतना सिंपल नहीं है। बिजनेस को बैलेंस करना, बिल्ड करना पड़ता है। एग्जैक्टली सैयद अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है और बिल्ड करके उसे बैलेंस करना मेनली इंपॉर्टेंट काम है। बिजनेस स्टार्टिंग बिजनेस इज नॉट अ बिग डील। आप चाहें, आप पेरेंट्स की मदद से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट यस एग्जैक्टली सर्वाइवल, आप कैसे मार्केट में रहेंगे? तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा। बिजनेस को मैनेज करने में अकाउंटिंग का बड़ा रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं मजीद। देखिए वही वाली बात आ गई, रिस्क वाली बात, कि प्रॉफिट, रिस्क, लॉस दोनों डायरेक्शन है। चलिए मजीद आगे बढ़ते हैं। तो इस पिक्चर का क्या मकसद है? व्हाट डज इट पिक्चर डिपिक्ट्स? एग्जैक्टली, सैयद अब्दुल्ला सेड वेरी वेल। प्रॉफिट की होप है, बिजनेसमैन प्रॉफिट सोच रहा है, ड्रीमिंग फॉर अ प्रॉफिट। जजाकुमुल्लाह, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं आप लोगों के। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, स्टे ब्लेस, जजाकुमुल्लाह। ओके प्यारे बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आइदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज इज अ बिजनेस। अब चाहे वो अंडे वाला बर्गर हो या फिर कोई रेडी फरोश या कोई सामान रखकर बेच रहा हो। तो आप देखें, ये स्मॉल स्केल हो गया अगर हम कहें तो। ठीक है, लार्ज स्केल बिजनेसेस हो गए। ऑपरेटिंग अ कंपनी, ऑपरेटिंग अ प्लांट, operating an airline is not a small business. It is basically perform on large scale. Okay, my dear students, let's move to the next slide. Classification. Classification types of business: trading, service, manufacturing. Trading business example: mobile phone shop, bookstore, petrol pumps, grocers, milk shops, medical store. Alhamdulillah, majority students have submitted their assignment yesterday before 12 o'clock, but I think 3 or 4 students did not yet. तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप देखें, असाइनमेंट्स को सीरियस लें, वरना आप खुद बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारी बात समझ रहे हैं या नहीं। अगर मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लेके यहाँ पूछना शुरू कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे आपको म्यूट रखने की बेसिकली वजह यही है कि अगर मैं अपना लेक्चर प्रॉपरली डिलीवर कर लूं और आप उसे अपने एंड पर बैठ के इत्मीनान से सुन लें, और आप उसे एक बार फिर दोबारा घर पर वीडियो के थ्रू चेक कर लें, देख लें, जहां पे कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही आप उसे दोबारा एक बार देख लें, तो आई थिंक ये हमारे लिए बेहतर होगा। जब हम क्लास में होते हैं फिजिकली तो हम एक ही क्वेश्चन को 3 स्टूडेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछते हैं,
लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस तरह से देखें। एग्जाम्पल्स देने का मकसद यही है, आप असाइनमेंट कर चुके हैं, इंशाल्लाह उसके मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स शो करने का मकसद ये है कि आप कंफर्म हो जाएं कि आपने जो वहां पे एग्जाम्पल्स प्लेस किए हैं क्या वो अकॉर्डिंगली हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव सर्विस बिजनेस एग्जाम्पल्स, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, schools, colleges or coaching center, dry cleaner, barber shops, bus or taxi service, airlines or train service, repair shops. Okay. The last one is manufacturing business, sugar industry, cement industry, ghee industry, cotton mills, furniture manufacturers, automobile manufacturers. Yes, trading business is merchandising business. Sayyida Amal Asim asked, sir, trading business is merchandising? Yes, exactly. मैंने आपको बताया भी था कि जहां ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप कोई सामान खरीदें और उसी हालत में बेचें, that activity comes under the category of merchandising business or trading business. Okay, now move to the next slide. We have business organization, sole proprietorship, partnership, joint stock corporation. Sole proprietorship, partnership, and joint stock company. What is accounting? Accounting is the means by which we measure and describe the results of business. Okay. Accounting is usually used in describing all types of business activities. That's why accounting is the language of business. That's all related to yesterday activity. I know कि हमें टाइम थोड़ा सा लगा है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, हमने बहुत क्विक रिव्यू किया है। मैंने समझाने की कोशिश नहीं की आपको, मैंने सिर्फ रिव्यू किया। अब मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूं। जी शाज आस्क, sir, what is the difference between partnership and joint stock? In partnership, you have limited number of investors or partners. There is a law for partnership. In partnership, you may have minimum 2 partners and maximum up to 20 partners, other than banking business. Okay, but in joint stock corporation, you have unlimited owners and you go for large scale business. Okay. Yes, in partnership, there is a contract, there is a deed, agreement. All these things will be discussed in Principle of Commerce class. That's why I left all these things. Okay? तो फिर मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मैं रुक गया यहां पर, मैंने स्टॉप कर दिया इसे। नाउ माहम, कौन सी स्लाइड बेटा बताइएगा प्लीज। सेकंड लास्ट जो थी। ओके, ओके, ओके। माहम, इज इट ओके? अकाउंटिंग इज द मीन्स, यानी अकाउंटिंग वो जरिया है बाय विच वी मेजर एंड डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग करने से हमें बिजनेस को, बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज को मेजर करने का और उन्हें एक्सप्लेन करने का तरीका पता चलता है। ठीक है, और अकाउंटिंग बिजनेस के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके ओनर्स को और मैनेजमेंट को हेल्प करती है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है जी मिनल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
Taha Naeem Sahab, I would like to request, auditing is a different thing. बिल्कुल ये सब्जेक्ट हमारे पास अभी है भी नहीं, लेकिन अब आपने लिख दिया तो मैं वन लाइन स्टेटमेंट दे देता हूं. ऑडिटिंग जो है वो अकाउंटिंग के बाद होने वाला काम है. ऑडिटिंग इज बेसिकली a word, a Latin word, audire, A-U-D-I-R-E, audire. It is extracted from audire. Audire means to listen, सुनना. तो होता क्या था कि जब अकाउंटिंग करने के बाद आप कहें कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट ये है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज, कोई इन्वेस्टर, कोई बैंक जो आपको लोन प्रोवाइड करने जा रहा है, हाउ दे विल बिलीव दैट यू आर शोइंग योर प्रॉफिट एक्यूरेटली, एग्जैक्टली. तो फिर उन बिजनेसेस का, उनके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का, उनकी चीजों का, उनके प्रॉफिट और लॉस का हम एग्जामिनेशन करते हैं. तो ऑडिटिंग इज जस्ट लाइक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स. ओके, चलें, अच्छी बात है. आपने आपने लिखा और देखें मेरी नजरों से गुजरा तो मैंने पूरी कोशिश की. यस, एग्जैक्टली. मोहम्मद मशूद सेड चेकिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे. चलें आगे बढ़ते हैं. तो अब मैं आपको नई स्लाइड शेयर करता हूं. वैसे तो मैंने ये प्रेजेंटेशन जो है इसको मैंने मजीद जो आज हमने पढ़ना है फंक्शंस, नीट, ऑब्जेक्टिव्स, इनको मैंने प्रेजी पर बनाया था. बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है. जैसे कि अबीर ने मुझसे फर्स्ट क्लास में कहा था कि सर आप अपनी क्लास जो है गूगल मीट पे कंडक्ट करें. तो मैंने कहा यहाँ लिमिटेशंस हैं बहुत सारी. तो अब देखें, आप इस तरह पावर पॉइंट पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और मुझे कोई एतराज नहीं है पढ़ाने में, लेकिन प्रेजी में आपको एक डिफरेंट लुक मिलता है. वहां वीडियो भी डायरेक्ट उसी में चल जाती है. यहाँ वीडियो नहीं मैं प्ले कर सकता, मुझे वीडियो प्ले करने के लिए अलग से गूगल क्रोम का ब्राउजर यूज करना पड़ेगा. ओके, वजिया सेड आई एम नॉट ऑडिबल. मायरा नसीम, एम आई ऑडिबल? नूरलैन, सैयदा अमल, am I audible to everyone? Okay, so there is a problem I think at your side. Please don't worry, this lecture is going to be recorded and we will share it inshallah very soon. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जज़ाकुमुल्लाह मेरे बच्चों, आप लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं. यस सर, तैयार रख के बैठे हुए होते हैं. चलिए, तो हमने अब आपको SLO1 यस्टरडे वाली प्रेजेंटेशन नजर आ रही है. इसमें हमने अकाउंटिंग को डिस्कस कर लिया था. लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तक हम डिस्कस कर चुके थे. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बिल्कुल वही वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से आप कह लीजिए कि ऐसे वर्ड्स यूज किए जिसको पढ़ के थोड़ी देर के लिए इंसान जरा घूमे फिरे और सोचे कि क्या इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग. तो वही वाली बात है, अकाउंटिंग इज द मींस, जो अभी हम पढ़ रहे थे जिसपे माहम ने कहा था सर वो सेकंड लास्ट स्लाइड शो करें. तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है, कुछ डिफरेंट नहीं है. तो मैं इससे जल्दी से आगे बढ़ता हूं और अब मैं कहता हूं कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग आखिर क्या है, इस तरफ आते हैं हम. The purpose of accounting. The basic purpose of accounting is to provide information. Keyword is provide information. Again, keyword is provide information. The basic purpose of accounting is to provide information useful in making economic decision. Either you should continue your business, you should restrict your activities, you should shut down your business, you should introduce more products,
आपको अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए, मजीद एम्प्लॉयज रखने की आपको आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं। ये तमाम डिसीजंस के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है हमें अकाउंटिंग से। और इससे भी सिंपल डेफिनेशन प्यारे बच्चों मैंने लिखी, मेरा ख्याल है अगर आप इससे थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो जिसे कहते हैं लेमैन स्टाइल, वो ये है, द मेन इंफॉर्मेशन अ बिजनेसमैन रिक्वायर्स इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हिज बिजनेस। The main information of a businessman requires is the profit or loss of his business, and this information provided to him by the accounting. तो नीड फॉर अकाउंटिंग समझ आती है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग समझ आता है कि बेसिकली एक बिजनेसमैन को ये जानना हो कि उसे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ, तो उसे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, नाउ come to the definition of accounting. The American Institute of Certified Public Accountants. The American Institute of Certified Public Accountants. मेरा ख्याल है पहले तो इसी पे बहस हो जाए कि ये क्या है, लेकिन मैं बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट और डिबेट नहीं करने जा रहा इस पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP. ICAP is the body who regulates the rules and regulation in Pakistan with the help of Securities and Exchange Commission of Pakistan. Securities and Exchange Commission of Pakistan is also a regulatory body of all companies operating in Pakistan. When we will study about company joint stock corporation in second year accounting, we will discuss, and Miss Nazleen will also discuss Securities and Exchange Commission of Pakistan when she will taught about joint stock corporation. I hope you are clear. American Institute of Certified Public Accountant has defined accounting as the art of recording. क्या कहता है वो? The art of recording. Art. It means accounting is an art. Okay? You got the point? Accounting is an art. It means, बहुत आसान लफ्जों में कह रहा हूं, बहुत ही आसान। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। प्यारे बच्चों, जी मैंने कहा पता नहीं सो गए, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों बोल के चेक कर लूं जाग रहे हैं या नहीं। जी, हर बच्चे को गाना गाना आता है। एवरी वन ऑफ यू कैन सिंग, बट एवरी वन ऑफ यू इज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। फॉर बिकमिंग अ प्रोफेशनल सिंगर you must have to take training. Yes, specialization. तो everyone is performing accounting. मैं तो बहुत आसान लफ्जों में यूं कहता हूं कि जो स्वीपर हमारे घर आकर हमारे घर से कचरा लेकर जाता है, he also knows accounting, but he does not know the way of doing accounting as the professional accountants do. So accounting is the art, and किस चीज का आर्ट है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. What you are going to record? You are going to record transaction. What you are going to record, my dear students? Transaction. Please write a statement in your register. Please write a statement in your register. What is transaction? Exchange of value. Exchange of value is called transaction. I said write a statement in your register or notebook. Exchange of money नहीं आयशा, I said exchange of value. अभी मैं बताता हूं कि exchange of money क्यों नहीं है, परेशान मत हो, पहले मेरी बात लिख लें, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहेंगे
लेकिन आपके रजिस्टर में अगर कुछ लिखा नहीं होगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप बार बार जाके यूट्यूब पे या फिर बार बार जाके आप क्लास में लिखते नहीं रहेंगे। ओके, वेरी गुड मिनाल, थैंक यू सो मच बेटा। What is transaction? All science students are requested to write this statement in your notebooks that what is transaction? Exchange of value is called transaction. अब मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहता हूं, देखें, AKHSS आपको जो चीज प्रोवाइड कर रहा है उसकी आपके लिए है। आंसर लिख के भेजिए प्लीज। AKHSS जो चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी आप और आपके पेरेंट्स के लिए है। एक्सीलेंट महम, वेरी गुड मिनाल, फातिमा, साहिल, भाई बहुत ही जबरदस्त बच्चे हैं आप लोग तो माशाल्लाह, खुश रहिए। इंपॉर्टेंस नहीं ज़हरा, इंपॉर्टेंस से भी बेहतर वर्ड है यहां पर जो सब बच्चे लिख के भेज रहे हैं। मेरा बच्चा जी जबरदस्त भाई, बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत ही प्यारे बच्चे मिले हैं इस बार तो माशाल्लाह। और बस मैं तो दुआ कर रहा हूं कि किसी तरह हालात ठीक हो तो फिर आप लोगों से मुलाकात हो मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब है कि AKHS इज प्रोवाइडिंग, क्या लिखा है ये, वाई नॉट मनी। जी बिल्कुल, मैं अर्ज कर रहा हूं तारिक आजम साहब, पहले मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप। मैं अर्ज कर रहा हूं कि AKHS इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस विच हैव वैल्यू फॉर यू। तो इट मींस इनकी सर्विसेज की आपके लिए वैल्यू है, बट क्या AKHSS अपनी सर्विसेज फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है? नो, AKHSS is doing this activity for earning profit. इम्तियाज is selling goods. तो वो जो गुड्स हैं जब आप जाके वहां से परचेस करते हो, मनी तो नहीं खरीदते ना भाई, वहां से जाके क्या खरीदते हो? गुड्स, सामान, ग्रोसरी। उस ग्रोसरी की आपके लिए है वैल्यू, और इन रिटर्न आप उन्हें देते हो, इन रिटर्न आप उन्हें क्या देते हो? मनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिकली मनी की आपके लिए वैल्यू थी, और अब जब आपने उसके बदले उनसे कोई गुड्स ले ली तो वो उन्होंने गुड्स आपको दी और बदले में उन्होंने उनके लिए जिस चीज की वैल्यू है वो ली। उनके लिए मनी की वैल्यू है, उन्होंने पैसे लिए और हमें सामान दिया। इसका मतलब है इस लेन देन में, इन दिस एक्सचेंज, व्हाट इज इन्वॉल्व? In this exchange, what is involved? Value. Excellent guys. In this exchange, what is involved? Value involved. So basically I and Imtiaz are exchanging their value. मेरे लिए पैसे, मेरे लिए सामान की वैल्यू है, तो मैं कह रहा हूं लाओ भाई मुझे सामान दे दो, एंड इम्तियाज के लिए पैसों की वैल्यू, तो वो कह रहा है लाओ मुझे पैसे दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, exchange of value. Okay, now all of you are alhamdulillah understand what is transaction. Let's continue the definition. The art of recording, classifying and summarizing. The art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money transaction and events which in part at least of a financial character. क्या कह रहा है? बहुत आसान लफ्जों में, अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को, एक्सचेंज को, उन एक्सचेंज को क्लासिफाई करने का, उन एक्सचेंज को समराइज करने का एक मखसूस अंदाज से, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, द मैनर विच डू नॉट नो एवरीवन, and all those transactions should be in the terms of money. जी, अब फातिमा ने भी वो पॉइंट रेस किया जो मैं फौरन रेस करने वाला था, बट फातिमा ने लिख के भेज दिया फौरन। मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुने, इंशाल्लाह आप मेरी बात सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे। मकसद ये है कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोगों में से बार्टर सिस्टम वर्ड सुना है कभी आप लोगों ने? BARTER, बार्टर सिस्टम, व्हाट वाज दैट?
एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मुझे मुझे बिल्फर्स, मुझे जी विदाउट मनी, इसका मतलब है आप लोगों को आइडिया है। अच्छा चलें, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उनके लिए मैं दो लाइनें कह देता हूं प्लीज। आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप लोग बहुत जीनियस, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। देखें प्यारे बच्चों, जब हम किसी को कोई सामान दें और बदले में उससे अपनी मर्जी का सामान ले लें तो फिर वहां पर प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि मैं आपको एक महीना ट्यूशन पढ़ाऊंगा, एक महीना मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, या फिर आप मुझसे जो है 5 चेयर ले लीजिए और मुझे बदले में बिलफर्स एक फैन दे दीजिए, तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम, जहां पर गुड्स को एक्सचेंज किया जाए। और बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी बार्टर सिस्टम ही दुनिया में राइज था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ डिफरेंट करेंसीज इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें आपने अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी हो, आइडिया हो आपको, तो पहले गोल्ड भी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू में काउंट होता था, गोल्ड के जरिए ट्रांजैक्शन होती थी। फिर पैसे की इजाद ने अकाउंटिंग को और आसान बना दिया। मैं मजीद आगे बढ़ता हूं, वरना बोलने के लिए तो इतना कुछ है कि मैं पूरी क्लास इस पे खत्म कर सकता हूं, लेकिन हम मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि बोर ना हो वो लोग जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, आई होप फातिमा इज नाउ क्लियर। फातिमा आपको समझ आया मेरा बच्चा जो आप कह रहे थे? ओके चलिए, तो कहता है एंड इवेंट्स विच इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ, यानी और वो इवेंट्स जिसमें कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर मौजूद हो। यानी ऐसा ना हो कि हम कह रहे हैं हम कल सामान बेचेंगे। जुमला सुन रहे हैं आप मेरा? एक कस्टमर आया, उसने हमसे पूछा कि भाई ये सामान कितने का है, और पूछ के चला गया, तो हम ये नहीं कह सकते ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि उसने आके जस्ट इंक्वायरी ली, उसने हमसे सामान अभी खरीदा नहीं, उसने पूछा ये कितने का है, हमने उसे बताया ये इतने का है, और वो चला गया। तो कोई गिव एंड टेक नहीं हुआ, कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई कस्टमर आए और आकर हमसे सामान खरीदे, सामान ले और कहे मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, आफ्टर 1 वीक पे करूंगा, आई विल पे यू आफ्टर 1 वीक, तो हम उसे बोलेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, चल बे चल भाग जा। नहीं ना, हमारा कस्टमर है प्यारे बच्चों, ठीक है, कस्टमर की तो रिस्पेक्ट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट हुजैफा साहब सेड, बट बार्टर सिस्टम इज आल्सो अ ट्रांजैक्शन। देखिए बात यह है, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या दी मैंने हुजैफा साहब? अब सैयद अब्दुल्ला सेड आप अच्छे हैं लेकिन उदाहरण नहीं, वेल वेल सेड जी हुजैफा, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, देखिए बात को समझिए कि जब जिस जमाने में चीजों का, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अगर आज देखें हुजैफा, बिल्कुल इसको ना इत्मीनान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रेस करते हैं तो मैं अगर उसे क्लियर ना करूं तो फिर मेरा फायदा ही नहीं है पढ़ाने का। ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रह जाएगा और ये आपको बार बार परेशान करेगा। मेरा प्यारा बेटा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, आज के दौर में, इन करंट सिचुएशन, मैं आपको कहता हूं भाई मुझसे 5 चेयर्स ले लो और मुझे आप बिलफर्स एक घर अपना मेरे नाम कर दो, तो आप मुझे बता सकते हो ना कि किसे फायदा होगा, किसे नुकसान? बताओ। हुजैफा ही बताएगा। मैंने आपको 5 चेयर्स दी, सही है, और बदले में आपसे एक घर ले लिया 80 यार्ड्स का, तो किसे फायदा हुआ हुजैफा? हु इज इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन? हुजैफा, हुजैफा, आर यू देयर? मुझे फायदा हो, इसका मतलब है मेरा प्यारा बेटा, यू आर मेजरिंग दिस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने इस लेने देने को पैसे से तोल लिया ना। जब आपने इसे पैसे से तोला तो आपने बताया मुझे फायदा हुआ। बट सोचो उस जमाने को, व्हेन मनी वॉज नॉट इन्वेंटेड, है ना? हाँ, जहरा ने बिल्कुल सही बात की है। तो उस वक्त क्या होता था? उस वक्त हुजैफा ये होता था कि हमें ढूंढना पड़ता था वो शख्स जो हमसे 5 चेयर लेने को तैयार हो जाए और उसके पास वही चीज हो जो मैं चाहता हूं। तो उस वक्त ट्रेड करना, उस वक्त तिजारत करना बड़ा मुश्किल काम होता था। समझ रहे हैं? ये आप चीजें मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको मजीद चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो अब आप क्लियर हैं? मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, आपको समझ आ गया कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था सिर्फ वो बार्टर सिस्टम में होता था और वहां वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती थी। बट अगर आज के दौर में आप उसको आज के दौर में बात करें तो फिर
आज अगर मैं आपको ये चीज दूं और आपसे बदले में एक घर लूं, तो वो फिर ट्रांजैक्शन कैसे हो जाएगी? क्योंकि उसमें हम वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं घर इतने रुपए का, और सर जो चेयर्स हमें दे रहे हैं वो इतने रुपए की, तो हमने ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बना दिया ना, वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर ली। बट व्हेन वी वर अनेबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स विच वी आर एक्सचेंजिंग, इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हुजैफा, आर यू क्लियर? प्लीज जल्दी से बताया करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। जी मेरा बच्चा, मनी ट्रांजैक्शन में सिर्फ गुड्स नहीं हो सकती, मनी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज में सर्विसेज भी तो होती हैं। जैसे हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में आपसे पैसे ले रहे हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको अपनी सर्विसेज देता है। स्कूल आप जाते हैं, स्कूल आपको सर्विसेज देता है। कॉबलर के पास आप जाते हैं, कॉबलर आपको सर्विसेज देता है और बदले में आपसे पैसे लेता है। आप इम्तियाज सुपर स्टोर जाते हैं, वो आपको गुड्स देते हैं, बदले में आपसे पैसे लेते हैं। आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आप जनाब लॉयर के पास जाते हैं, आप स्टेट एजेंट के पास जाते हैं, तो वो आपको सर्विसेज देता है। ओके, हुजैफा आपने मुझे बताया नहीं, इसका मतलब है आपको मेरी बात समझ नहीं आई, या फिर हुजैफा हमारे साथ क्लास में नहीं है। ओके, तो नाउ इट इज क्लियर और नॉट, ये बताएं, ये इंपॉर्टेंट है जानना मेरे लिए। आप हमारे साथ तो हैं, चलें, शुक्रिया। चलें फिर बात को आगे बढ़ाता हूं कि वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो इवेंट्स हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो जो इवेंट्स हैं, वो जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है, वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जजाकुमुल्लाह सैयद अब्दुल्ला साहब, खुश रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और आप सबको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो कि आप लोग बहुत अच्छा, पिछले रिकॉर्ड्स को भी आप ब्रेक करें और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए, और अल्लाह के हुक्म से आप जरूर लाएंगे इंशाल्लाह। चलिए बात को जल्दी से मुकम्मल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। मेरे प्यारे बच्चों, कि इन ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल करेक्टर हो, और आखिर में कहता है अकाउंटिंग फन है, अकाउंटिंग आर्ट है, किस चीज का? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग का आसान मतलब है टू रिप्रेजेंट, कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग सिर्फ रिजल्ट प्रोड्यूस करने का नाम नहीं है। अकाउंटिंग ना सिर्फ ट्रांजैक्शंस को इवेल्युएट करेगी, बल्कि उनसे जो रिजल्ट वो मालूम करेगी, वो उसे ऐसे कम्युनिकेट करेगी कि आइदर यू आर अ डॉक्टर, आइदर यू आर एन इंजीनियर, you will be able to understand the results of accounting. You will be able to understand the position of your business by reading those documents which will be produced by accounting. अकाउंटिंग सिर्फ इस, देखे ना, मैं आपको बहुत सिंपल मिसाल देता हूं। आप एक डॉक्टर हैं, आपने एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना दिया, शुरू में आप उसका खुद हिसाब किताब करते रहे, बट जब आपको लगा कि भाई अब मेरे लिए हिसाब किताब करना मुश्किल है, आपने एक अकाउंटेंट रख लिया। उस अकाउंटेंट ने सारा हिसाब किताब किया, आपने उससे पूछा लाओ बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है। उसने अपने एक मखसूस अंदाज से, वो मखसूस अंदाज सिग्निफिकेंट मैनर से उसने अकाउंटिंग परफॉर्म की सारी, और उसके बाद उसने रिकॉर्ड लाके आपके सामने रख दिया कि सर ये प्रॉफिट हुआ है। अब आप उससे बोल रहे हैं, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, आप उससे कह रहे हैं अरे भाई ये क्या बनाया है, ये तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में ये अकाउंटिंग का ये आर्ट है कि व्हेन इट प्रोड्यूस रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी इन अ मैनर दैट विल बी इजीली अंडरस्टेबल फॉर एवरीवन। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, कि वो बड़े आराम से समझ आ जाएगा हर शख्स को जो उसको पढ़ने की सलाहियत रखता हो। बस, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे उसके पास कॉमर्स की नॉलेज हो या ना हो, बिजनेस का उसे पता हो कि बिजनेस किस लिए किया जाता है, बिजनेस प्रॉफिट और लॉस के लिए किया जाता है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, आई थिंक क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। ओके, तो फिर एक काम कीजिए आप लोग, काम यह है कि आप लोगों ने घर पर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये दो चीजें आपने घर पर पढ़नी है। इफ यू हैव परचेज योर बुक, अगर कर चुके हैं तो ठीक, वरना आप नेट से सर्च कीजिए थोड़ा सा चीजों को। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पेज नंबर 2 पर मौजूद हैं बुक के, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग भी पेज नंबर 2 पर मौजूद हैं बुक के, ठीक है।
जी तारिक आजम साहब, मैं ये शेयर करूंगा पीपीटी जब ये कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस पे डेली बेसिस पे काम हो रहा होता है सर। ठीक है, ओके। तो देखे ना, अभी इसमें मैं डेली बेसिस पे अपडेट कर रहा हूँ चीजों को। तो आपने देखा आज मैंने एक और प्रेजेंटेशन आपको साथ दी, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चलिए।